2026 اور ہم جو ہیں وہ 1950 میں جا رہے ہیں میرے خیال سے. 60-70 سال تو ہم پیچھے ہے ہی ہیں. ہیلو گائز، میرا نام حسین خان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کمپیریزن ٹی وی. پورا پاکستان اس ٹائم پہ بند ہے، لوگ سڑکوں پر آ گئے. ہر طرف اگر آپ دیکھیں تو روڈ بالکل بند ہے. اسلام آباد، کراچی اس ٹائم پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے اندر موجود ہے. سب سے بڑا سٹی ہے پاکستان کا کراچی. لاہور، اسلام آباد اگر دیکھیں، گجرانوالہ، پشاور، کوئٹہ، ہر طرف اگر آپ دیکھیں کیپٹل اسلام آباد سمیت پورا پاکستان اس ٹائم پہ بند ہے. یہ سب سے بڑے شہر کی مین سڑک اوپر موجود ہے. اگر آپ دیکھیں تو سامنے سڑک کے اوپر بائک لگا کے اس ٹائم پہ روڈ بند کیا گیا ہے. اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو پروٹیسٹر موجود ہیں. پروٹیسٹر یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ مہنگائی، انفلیشن اور پیٹرول کی جو قیمتیں بہت تیزی سے بڑھی ہیں، اس کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں. اور پورے پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ پبلک نکلی ہوئی ہے. پبلک سے بات کریں گے، پبلک اس ٹائم پہ کس سچویشن کے اندر ہے، کیونکہ اگر ڈے بائی ڈے دیکھیں تو لوگ سڑکوں کے اوپر آ رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اور حالات اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں تو کنٹری کے ڈے بائی ڈے خرابی کی طرف جاتے جا رہے ہیں. ابھی اگر انٹیریئر منسٹر کا بیان دیکھیں ریسنٹ آیا کہ پورے پاکستان کا سسٹم کولیپس کر گیا. حالات پاکستان کے کس طرف جا رہے ہیں اگر کمپیریزن انڈیا کے ساتھ کریں تو نیبر کنٹری ہے، اس کو دیکھیں کس طرح گرو کر رہے ہیں. پاکستانی پبلک سے بات کریں گے، جس طرح یہاں پہ پروٹیسٹر موجود ہیں پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ احتجاج جو ہو رہا ہے اس ٹائم پہ پورے پاکستان کی سڑکیں بلاک ہیں، پورا شہر بند ہے اور پورے پاکستان اس ٹائم پہ بند ہے، کیا کہیں گے؟ یار اس وقت غریب آدمی پریشان ہے، یقین کریں. یا حافظ صاحب نے جو قدم اٹھایا، یقین کریں یہ کوئی سب کی آواز ہے، یہ ہر بندے کی آواز ہے. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، آپ یقین کریں پیٹرول بھروانے جانا جان نکل جاتی ہے. مگر حکمرانوں کو اس وقت جان نکل جاتی ہے، غریب انسان کی تو جان ہی نکل گئی ہے. میں بولوں نا، یہ پیوس پارٹی، نون لیگ، یہ سارے ان کی ملی بھگت ہیں. یہ لوگ سفر تھوڑی کرتے ہیں بسوں میں، غریب آدمی سفر کرتا ہے. اس وقت غریب آدمی کے دل سے پوچھو. ابھی آپ دیکھیں یہ مین سڑک ہے پورا بند ہے. اگر آپ دیکھیں جتنی بھی مین سڑکیں تھیں سارے تقریباً اس ٹائم پہ کلوز ہیں. اور صرف یہ کراچی میں نہیں، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، گجرانوالہ، فیصل آباد، پورا پاکستان بند ہے اس ٹائم پہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈے بائی ڈے کنٹری کے حالات کس طرف جاتے جا رہے ہیں؟ لوگ مہنگائی، انفلیشن سے اتنے تنگ آگے، سڑکوں پہ آگے لوگ. یا غریب سے غریب آدمی مرتا جا رہا ہے، امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. عالمی منڈی میں ریٹ گرے ہیں اور یہاں پاکستان میں ریٹ بڑھے ہیں. امیر بھی پریشان ہے نا، انفلیشن سے تو امیر بھی افیکٹ ہوتے ہیں. امیر انسان تو خوش تو نہیں ہوتا، اس کا بزنس بھی تو افیکٹ کرتا ہے. دیکھیں اس ٹائم پہ سڑک اگر آپ دیکھیں بلاک کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ روڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سامنے سے بائکیں کھڑی ہوئی ہیں، اس سائڈ بھی اس سائڈ بھی بائکیں لگا کے روڈ بلاک کر دیا گیا ہے. اور اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو سامنے سے بھی پورا روڈ اس ٹائم پہ کلوز ہے. اور پروٹیسٹر ہزاروں کی تعداد کے اندر صرف اس روڈ کے اوپر موجود ہیں. اس روڈ کے علاوہ اگر آپ جتنے بھی مین سڑکیں ہیں اس کے اوپر بھی دیکھیں تو اس ٹائم پہ روڈ بلاک ہیں. اور ہر طرف آپ دیکھیں تو انفلیشن کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے. لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ لوگ اس ٹائم پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے سڑکوں پہ آ گئے اور روڈ اس ٹائم پہ بند ہو گئے. پورے پاکستان میں اس ٹائم پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں. کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ کنٹری کی؟ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ لوگ اتنے پریشان ہو گئے کہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے. اگر یہاں پہ آپ دیکھیں روڈ کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں سچویشن، اگر پورا روڈ اس ٹائم پہ جام ہے اور روڈ کے اوپر اس ٹائم پہ بالکل سناٹا چھایا ہوا. اگر آپ دیکھیں تو پروٹیسٹر یہاں پہ موجود ہیں. کنٹری کے حالات کو آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں حالات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں کراچی شہر کا ایک واسی ہوں اور ایک عام شہری ہونے کے ناطے کیا مسائل ہیں یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. ایک عام جو فرض کریں ایک بائکہ چلانے والا ہے، وہ اپنے گھر کا گزارا کیسے کر رہا ہے، اس کو خود اندازہ ہے کہ وہ 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر 125 روپے لیوی کی شکل میں بتا دے رہا ہے. صرف لیوی، ٹیکس وغیرہ اور الگ چارجز الگ ہیں. اگر وہ دن کا 5 لیٹر یا 7 لیٹر یوز کرتا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں گے ملٹی پلائی بائی 7 کہ وہ کتنے پیسے سے بتہ کی شکل میں دے رہا ہے. یہ صرف ایک پیٹرول کی بات ہو رہی ہے. ابھی اس کو کیا پرابلم ہے؟ گیس میسر نہیں ہے. اس کو کیا پرابلم ہے؟ بجلی مہنگی ہے. اس کو کیا پرابلم ہے؟ گھر میں پانی نہیں آ رہا. جب پانی آنے کی باری آتی ہے تو بجلی نہیں ہوتی، جب بجلی ہوتی ہے تو پانی نہیں ہوتا. ایسی سچویشن کے اندر جو لوگ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے اقتدار کے عواموں میں آئے ہوئے ہیں، وہ ان کو ڈوب مرنا چاہیے. ان بے شرموں کو اتنی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ کس حالت میں ہے. آپ ہمارے پورے ملک کی سچویشن اٹھا کے دیکھ لیں کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہمارے پہ مسلط ہے. ہم لوگ کافی ٹائم سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کنٹری کی اکانومیکل کنڈیشن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. ہر ٹائم پہ، ہر تھوڑے ٹائم کے بعد اس طرح کے حالات بنتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ کنٹری کی اکانومی کولیپس کر جائے گی. سری لنکا والے حالات بن جائیں گے. کہاں پہ آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں حالات آپ کے سامنے ہیں. عوام سڑک پر ہے، عوام حکمرانوں کی عیاشیوں کی سزا بھگت رہے ہیں. اور پورا پاکستان اس ٹائم پہ بند ہے. پاکستان میں اس وقت پورا پاکستان بند ہے. کراچی کا کشمیر، ہر جگہ پر نوجوان باہر نکلے ہوئے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہ حکمرانوں کے لیے ایک اعلان بھی ہے، حکمرانوں کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے کہ انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب ان کے ایوانوں کے تختے الٹ دیے جائیں گے. پاکستان کی عوام کا جو برداشت کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے. تو عوام کو ریلیف کیوں نہیں دے رہے؟ ریلیف
देने के बजाय डे बाय डे पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस वजह से लोगों का आटा भी महंगा हो रहा है। खाने के लिए लोगों की परेशानी है। करीब जो 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं ना, उसके घर के अखराजात बेहतर नहीं चल रहे। वो बेचारा बच्चों की फीस नहीं भर सक रहे, अपने घर का निजाम नहीं चला सकते। पाकिस्तान के हालात बेहतर होने का एक ही रास्ता है, और वो ये है कि नौजवानों को शऊर दिया जाए, उनको अपने वोट की ताकत का जो है ना अंदाजा करवाया जाए, और एजुकेशन दी जाए, एजुकेट किया जाए, उन्हें समझाया जाए, और नौजवानों में बेदारी पैदा की जाए, और वो अपने हक के लिए आवाज उठाएं, बाहर निकले। इसके मगर ये मसला हल नहीं हो सकता। मैं आम आवाम के भी आपके तवज्जो से पैगाम देना चाहता हूँ कि आम आवाम भी जमात इस्लामी के इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आए जमात इस्लामी के सर से बाजू बने और अपनी आवाज अवानों तक पहुंचाएं। जमात इस्लामी ने हमेशा इश्यूज के ऊपर बात की है। जमात इस्लामी ने बिजली के ऊपर बात की, पानी के ऊपर बात की, बेरोजगारी के ऊपर बात की, टैक्सेस नाजायज टैक्सेस के हवाले से बात की, यहाँ बल्दियात के इलेक्शन नहीं हो रहे थे उसके ऊपर बात की। आम आवाम का मुकदमा अदालत में लेके जाने वाली जमात इस्लामी है। इस हालात में अगर आप लेकिन आप क्या समझते हैं, जब कोई हालात ख़राब होते हैं, सिनेरियो इस किस्म का बनता है, तो पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो लोग नेशन बन के क्यों नहीं सोचते? दूसरे का मसला अपना मसला क्यों नहीं समझते? अगर एक तबका निकलते तो दूसरे तबके वाले अगर उससे प्रोटेस्ट के ऊपर मार पड़ रही होती है, हालात खराब होते तो लोग खुश हो रहे होते हैं। अपना मसला सब नहीं समझते, नेशन के तौर पे सोच यहाँ पे नहीं है। आपकी बात को समझिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये मसला जमात इस्लामी का नहीं है, ये सबका मसला है। एक बाइक चलाने वाले का मसला है, एक आम नौकरी पेशा फर्द का मसला है, एक उस बंदे का भी मसला है जिसकी तनख्वाह 15,000 है, और उसका भी मसला है जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है। यहाँ मैं समझता हूँ कि हमें डिवाइड किया गया है, हमें डिवाइड किया जा रहा है कोई किसी शक्ल में। मैं आप उसको मजीद एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं आपको यही बता सकता हूँ कि खुदारा होश के नाखन लेने की जरूरत है हुक्मरानों को। मैं समझता हूँ कि होश के नाखन लेने की जरूरत है हुक्मरानों को। हुक्मरान बेहिस हुक्मरान इस चीज को सोचते नहीं है कि एक आम बंदा जो है वो बेरोजगार बंदा, उसके लिए क्या सहूलतें दी है गवर्नमेंट ने? कुछ भी तो नहीं दिया। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि बुनियादी सहूलतों से महरूम कौम है ये। उसके लिए हम 2026 जा रहा है और हम एक बुनियादी जरूरत की चीजें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी आपको पता है एआई का दौर है, अभी इस टाइम पे दुनिया के अंदर डिस्कशन ये हो रही है खला के ऊपर बिल्डिंगें बनेंगी है, खला के ऊपर लटकी हुई बिल्डिंगें बनेगी। एआई का दौर है, रोबोट के ऊपर सारा निजाम शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पे आप देखें, और लोग आपको पता है शादियां भी अभी एआई से लोग कर रहे हैं, रोबोटों से शादियां कर रहे हैं, और यहाँ पे बेसिक चीजें नहीं मिल रही। ये मैं समझता हूँ कि 2026 और हम जो है वो 1950 में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 60-70 साल तो हम पीछे है ही है। मतलब हम अभी तक अपनी आने वाली नस्ल को क्या देंगे? हम माचिस की डब्बी पे टैक्स देते हैं, हम किस चीज पे टैक्स नहीं देते हैं। इनको इतना एहसास नहीं है कि ये कौम है, इसको और मजीद पीस रहे हैं, इसको और पिसवा कर रहे हैं। तो मेरी खुदारा आपके इस चैनल से रिक्वेस्ट है उन मेहमानों में कि वो होश के नाखन लें। हमारा हक देना है उन्होंने, चाहे वो जिस तरह मर्जी दे, इस तरह भी हम लेंगे और उस तरह भी लेंगे। आम आदमी को इतना मजबूर कर दिया है कि वो अपने मसाइल में उलझा हुआ है। वो प्रोटेस्ट के लिए भी नहीं टाइम निकाल पा रहा। उसको इतना मजबूर कर दिया है कि उसकी जो आमदन है वो अपनी आमदन पूरे करने में लगा हुआ है। अभी देखें 3 करोड़ आबादी का सिटी है और चंद हजार बड़ी मुश्किल से लोग आए हों। वो वजह यही है कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आम आदमी के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग निकल नहीं पा रहे। अब क्या समझते हैं आने वाला वक्त, आप पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? जिस तरह हम लोग सालों से सुनते आ रहे हैं, जब से होश संभाले नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, महंगाई हो गई है, वहाँ पे माँ ने 3 बच्चों समेत खुदकुशी कर ली है, इन्फ्लेशन का रेट अगर आप देखें, हर तरफ आप देखें तबाही और तबाही है, बेहतर नहीं हो रहे मामला। ये कैसे बेहतर होंगे और आने वाला वक्त आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब तक कि जेन्युइन लीडरशिप सामने नहीं आएगी और ये फेक किस्म की लीडरशिप रहेगी, ये हालात ऐसे ही रहेंगे। इनसे ही तवक्का करना कि ये कोई हालात में बदलाव लाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। जो जेन्युइन लीडरशिप है ग्रास रूट लेवल से उठेगी, लोगों की बात करेगी, जिनको हालात का इल्म होगा, वही तब्दीली ला सकेंगे। हम ये समझते हैं कि लेवी जो है वो भत्ता है, एक टैक्स जो है वो भत्ता है, इसको जो है ना वो फौरन हटाया जाए। लेकिन लेवी तो ये आईएमएफ के कहने के ऊपर बढ़ाई जाती है। आईएमएफ कहता है कि लेवीज बढ़ाएं, टैक्स बढ़ाएं, तो ये उससे ये बढ़ती है लेवी। आईएमएफ तो बहुत कुछ कहता है। आईएमएफ तो ये भी कहता है कि आप अपने खर्चे कम करें। आईएमएफ तो ये कहता है कि अपने
जो आसाइश और बाहर के प्रोग्राम जो 100 लोगों को बाहर ले जाना है, इसको आप कम करें, अपने खर्चे कम करें, ऐशे कम करें। उसके बरक्स हम देखते हैं कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो 11 अरब रुपए का जहाज़ खरीद लेती हैं। इसके बरक्स हम देखते हैं कि 9 करोड़ रुपए की सेनेट चेयरमैन। इसी तरह से नीचे तक आप देखें आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। एक डीसी, एक जो है कमिश्नर, उसके पास भी डबल केबिन है। तो इस तरह से हमारे मुल्क में इस गरीब मुल्क के अंदर अगर ये होगा, एक रेडी को हटाने वाला जो जब जाता है तो वो भी एक डबल केबिन के अंदर जाता है, किस तरह से मुमकिन है कि बदलाव आएगा? कहा जाता है कि अगर लेवी ज्यादा वसूल नहीं की जाएगी तो IMF लोन नहीं रहेगा, अगर IMF का लोन नहीं मिला तो कंट्री के इस टाइम पे जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, इकोनॉमी बिल्कुल बैठ जाएगी। तो फिर हालात कहाँ जाएंगे? फिर तो इन्फ्लेशन के वो तूफान आ जाएगा कि यहाँ पे लोग रोटी के लिए फिर मारदार करेंगे, वो हालात बनेंगे अगर IMF से लोन नहीं लिया गया। अच्छा, IMF से जो डील करता है वो ये तो करता है कि IMF को कहने पे ले भी लेता है, ठीक है ना? तो वो IMF के कहने पे ये इनकी हुकूमत की अपनी जो आसाइश है, जो अय्याशी है, वो खत्म नहीं करवा सकता। उस पर कोई बात नहीं हो सकती। क्यों भाई? मुफ्त पेट्रोल है, गाड़ियां है, मुफ्त जो है ना वो बिजली है, शाही खर्चे, बिल्कुल है ना? इन पे बात नहीं हो सकती। ये असल में हमारी हुकूमत की बदमाशी है। मैं आपको बताऊं, देखें, बात यह है कि IMF ने ये तो नहीं कहा कि आप लेवी लें। IMF ने कहा कि आप जो ना अपने खराजों को कैसे बैलेंस करेंगे। उन्होंने कहा यार हम जिस तरह से काम कर लेंगे, लेवी लगा लेंगे, वो लेवी से पैसे आएंगे, हम उससे बैलेंस कर लेंगे। बिल्कुल आसान काम नजर आ रहा है, पेट्रोल के ऊपर लगा लो। हर आदमी से जो ना मजबूरन आदमी जो ना देता ही है, ठीक है? तो ये लेवी जो ना खत्म होनी चाहिए। लेवी जो है भत्ता है, नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है, ठीक है? वैसे आप लोग अपने रहकर सर कमेंट में करें, आप कुछ कहना चाहेंगे इस टाइम पे जो पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, हालात को आप किस नजर से देख रहे हैं? पूरा पाकिस्तान इस टाइम पे बंद है, लोग परेशान इतने हो गए रोडों पे आ गए लोग। ये दरअसल हुकूमत की मुसलसल वो जालिमाना टैक्सेस की वजह से हैं। फिलहाल के लिए आप पेट्रोलियम के जो है ना लेवी टैक्स के बारे में देख सकते हैं 135 रुपये, जो कि सरासर नाजायज़ है। इसके अलावा और भी बहुत से टैक्सेस हैं जो कि नाजायज़ है, और हुकूमत पर इतनी महंगाई की जा रही है कि हुकूमत अभी बर्दाश्त नहीं कर सकती उनको। अभी पूरा पाकिस्तान में इस टाइम पे देखें, जितने भी सिटीज हैं, सारे सिटीज तकरीबन इस टाइम पे पाकिस्तान के बंद हैं। लोग कितने परेशान हैं, आप क्या समझते हैं? गरीब इंसान के हालात तो इस टाइम पे पूछो तो खाना पेशाब उनका रह गया। आप ये मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट की वजह से लोग परेशान हैं? आप ये नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि लोग अभी प्रोटेस्ट के लिए सड़कों के ऊपर आ गए हैं। गरीब इंसान इस टाइम पे खाने के लिए परेशान इस टाइम पे बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, वो हम सभी गरीब है। तो मैं खुद भी किसी अमीर घराने से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। मेरे खुद भी जो है 12 नंबर में जगह है, मैं खुद एक गरीब हूँ। मैं खुद एक 30,000 की नौकरी पे साथ गुजर बसर करता हूँ। तो बात दरअसल ये है कि हम सब में से हमारे मुल्क में जितनी बेरोजगारी हो रही है, और अगर इतनी महंगाई होगी, बेरोजगारी भी खुद ब खुद बढ़ेगी। बहुत से कारोबारी लोग, बहुत से बड़े लोग जो है ना यहाँ से कंपनीज खत्म करके जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक कंपनी में हजारों लोग, कई सैकड़ों लोग काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए बेरोजगारी बढ़ती है, और बेरोजगारी के ऊपर महंगाई और भी बढ़ जाती है। तो इसके ऊपर आवाम परेशान है। इस वक्त जो है ना बहुत इस तरह नज़ा का माहौल है। जब तक हुक्मरान किसी भी कौम का हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, या कोई भी मुल्क हो, जब तक पाकिस्तान के हुक्मरान या किसी मुल्क के हुक्मरान उस अपनी कौम से सिंसियर नहीं होंगे, मुखलिस नहीं होंगे, तब तक मसाइल नहीं होंगे। पाकिस्तानी हुक्मरान क्यों सोए हुए हैं? इनको आवाम की फिक्र क्यों नहीं है? बातों के अलावा बातें तो बड़ी मीठी मीठी कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे आवाम की हेल्प क्यों नहीं करते? मेरा ये ख्याल है कि जब तक इनके गिरबान से कोई पकड़ने वाला पैदा नहीं होगा, तब तक ये होश के नाखून नहीं लेंगे। और आवाम का जो सैलाब है, आवाम की जो ताकत है, वो आवाम जिस दिन महसूस कर लेगी और वोट के जरिए से इसका जवाब देगी, उस दिन पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। आपको लगता है पाकिस्तान की आवाम यूनाइटेड हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे नेशन के तौर पे तो सोच ही नहीं डेवलप है किसी की। हर किसी ने अपने अपने मसाइल बनाए हुए हैं, अपनी अपनी सोच बनाई हुई है। तबकात इतने ज्यादा बने हुए हैं, बटे हुए, मतलब जबानों में, फिरकों में, मतलब आप देखें तो नफरतें बहुत ज्यादा हैं। लोग नेशन के तौर पे किसी चीज को नहीं लेते, हर बंदा अपना अपना एक लगा हुआ है। तो कैसे तब्दीली आएगी? एजुकेशन और इत्तेहाद और मुत्तहिद हुए बगैर, जाहिर है आपका दुश्मन मुत्तहिद है। ये 70-80 सालों का एक गठजोड़ है जो मुसलसल अपनी हुकूमतें कायम रखता है, अपनी सरदारियाँ चौधराटे वडेरा शाही कायम रखता है, और आवाम के ऊपर जुल्म सितम अपनी पॉलिसियों के जरिए से आवाम का खून चूसने की जो तसलसल है, इसके खिलाफ जिस तरह हुकूमतों ने हमारे हुक्मरानों ने इत्तेहाद कर रखा है, इसी तरह पाकिस्तानी नौजवानों को, पाकिस्तानी आवाम को भी इत्तेहाद करना पड़ेगा। पॉलिटिशियन आप देखें, पॉलिटिशियन एक वालिद जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर बनता है, पार्टी का सरबराह बन जाता है, फिर उसका बेटा बनता है, फिर उसका बेटा बन जाता है। तो जो दूसरे पार्टी के रहनुमा होते हैं, दूसरे जो होते हैं जिन्होंने 50-50, 60 साल लगाए हुए होते हैं, वो पीछे खड़े हुए तालियां बजा रहे होते हैं, और एक जो लीडर होता है उसका बच्चा आगे आके तकरीरें करो तो लीडर बने होते हैं। मतलब ये तो उनकी पार्टी के
जो रहनुमा है, लीडर है, उनकी भी तौहीन है ये। 70 साल वाले पीछे तालियां बजा रहे, 40-50 साल वाले, मतलब 30 साल वाले देखें तो आगे वो खड़ा और तकरीरें करे, और उन्हें डांट भी रहे। आपने देखी होंगी, वीडियोस लीक भी हुई है, वो डांट भी रहे। आपने एक जेन्युइन इशू की तरफ इशारा किया जो पाकिस्तान के मसाइल का हल है। जब तक पार्टियां अपने पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं लाएंगी तब तक जमहूरी हुकूमत कायम नहीं हो सकती। इन्हें फिर चोर दरवाजों से आना पड़ता है। इसलिए जब मौरूसी सियासत ख़त्म होगी और पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको एजुकेट किया जाएगा, वो मुत्तहिद होंगे, इंशाल्लाह इस सूरत में हमको उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा, पाकिस्तान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेगा। जल जल के बुझ गया हूँ मैं, ऐसा लगता है कि एक दिया हूँ मैं। जल जल के बुझ गया हूँ मैं, ऐसा लगता है कि एक दिया हूँ मैं। किस तरह दिलाऊं यकीन तुम्हें अपनी मोहब्बत का, ऐसा लगता है कि एक सैयां हूँ मैं। नस्ल दर नस्ल गुजरे हैं इस वीराने में, नस्ल दर नस्ल गुजरे हैं इस वीराने में। तुम्हें क्या लगता है कि नया आया हूँ मैं? फकत सुनेंगे हर एक बात अगर अकबर हो, फकत सुनेंगे हर एक बात अगर अकबर हो। ना जाने कितने झूठों को छोड़ आया हूँ मैं। मत करना गुलामी तुम इन यजीदों की हसनैन, मत करना गुलामी तुम इन यजीदों की हसनैन। शहीद करबला का पैगाम लाया हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और कुछ शेर और शायरी आपने पढ़ी है जो खुद आपने खुद लिखी है, खुद बनाई है, वो बताएं। लिखा है कि ओ मुझे सबर में तो याद करूँ। इस टाइम पे आप क्या समझते हैं, पूरा पाकिस्तान इस टाइम पे बंद है, प्रोटेस्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे? पूरे पाकिस्तान में पब्लिक इस टाइम पे सड़कों पे मौजूद है। बिल्कुल, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पे आवाम सड़कों पर आई है और बड़ी बड़ी जितनी भी शाराएं वो तकरीबन बंद कर दी। और ये बिल्कुल इस वक्त मौके की मुनासिबत से बेहतरीन काम हुआ है, जो होना चाहिए इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि ये मसला हम सबका मसला है, मेरा भी मसला है, आपका भी मसला है। और जो आदमी पाकिस्तान के अंदर रहता है वो इस मसले का, इन मसाइल से शिकार है, इस मसले की वजह से। तो सबको निकलना चाहिए। आप नहीं समझते कि इन्फ्लेशन है तो कि गरीब इंसान का तो गला यहाँ से पकड़ के दबा दिए, गरीब का तो सांस लेना मुश्किल कर दिए। एक इंसान जो जाते हैं काम के लिए, सुबह जाता है, शाम को जब अपने बच्चों को देखता है, उनकी खाने की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, उनकी एजुकेशन की फीसें नहीं पूरी होती, अखराजात नहीं पूरे होते, वो बेचारा तो मतलब घुट रहे हैं अंदर अंदर से, तो वो घुट रहे। क्या मतलब हालात बने हुए इस टाइम पे? गरीब इंसान अपने बच्चों को बेहतरीन लाइफ स्टाइल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ये शिकवा, बेसिक चीजें भी नहीं है। शिकवा जुल्मत शब से तो बेहतर था कि अपने हिस्से का चिराग जलाते जाते। तो आज हालात तो ऐसे हैं कि हमारा सांस लेना दुश्वार हो गया। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है और हर तरफ से हैं, रोटी तक पूरी नहीं हो रही। लेकिन सिर्फ एक मरतबा हमने ये करना है कि एक मरतबा सड़कों पर निकले और जिन्होंने हमारी गर्दन पकड़ी है ना, हम उनकी गर्दन पकड़ लें। जब उनकी गर्दन पकड़ लेंगे ना तो उन्हें हमारी गर्दन भी छोड़नी पड़ेगी और उनको पीछे भी हटना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बड़ी मज़ाहमत की ज़रूरत है और ये मौका है इस वक्त आवाम के पास कि इस वक्त जो है ना पूरा मोमेंटम बना हुआ है। पूरे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी सड़कें जाम है, तो लोग बड़ी तादाद में भी मौजूद भी हैं और ज़्यादा तादाद में आ जाए तो इनकलाब, ये रोटी गैस बिजली पानी, ये तो बहुत दूर की बात है, इनकलाब भी दूर नहीं है। इनकलाब करीब है, इनकलाब इस वक्त सड़कों पर है। तो लोगों को चाहिए कि अगर वो इन सारे मसाइल को देखना चाहते हैं, इनको हल करना चाहते हैं और अपनी गर्दन को छुड़ाना चाहते हैं तो इनको गर्दन से पकड़ने इस वक्त।